کے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں۔ ایک چیز اور، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بدگمانی مت کرنا، دوسری چیز جاسوسی مت کرنا، اور تیسری چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سنیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی غیبت، دوسری افک، تیسری بہتان۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں، سنو، غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ لیں اور اس برائی کو اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسرے لوگوں سے بیان کریں، یہ ہے غیبت۔ برائی تو ہے، شراب پیتا کوئی، ہمیں معلوم ہے شراب پیتا، ہم اس کے سامنے نہیں لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان کریں، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت کی دوسری قسم ہوتی ہے افک۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے شراب پیتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں ہے جوا کھیلتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن ہمیں کسی نے بتایا اور ہم نے اس کی بات کو آگے بڑھا دیا بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر بات کو سوچے سمجھے۔ کسی نے ہم سے کہا کہ میں نے دیکھا اور ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کو آگے بڑھا دیا، دیکھو فلاں کی لڑکی ایسی۔ یہ ہے افک، یہ افک، بغیر تحقیق کے سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دینا۔ اور ایک ہے بہتان، ایک ہے بہتان، یہ تیسری قسم غیبت کی بہتان۔ بہتان کیا ہے؟ آپ شراب پیتے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی بہت بڑا شرابی ہے، آپ جوا کھیلے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے جوا کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا، یہ ہے بہتان، الزام لگانا۔ یہ کیا ہے؟ الزام لگانا۔ میں نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن ہم یہ کہیں کہ فلاں کی لڑکی بہت بگڑی ہوئی ہے، میں نے اس کو فلاں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ دیکھا نہیں ہے، یہ ہے الزام۔ یہ تینوں چیزیں غیبت کہلاتی ہیں۔ پہلی چیز کوئی برائی ہے لیکن ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ۔ کوئی برائی ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمیں کسی نے بتایا، اس کو ہم نے بغیر تحقیق کے ہوئے آگے بڑھا دیا، یہ بھی گناہ۔ اور تیسرا کوئی برائی ہے ہی نہیں اس کے اندر اور ہم اس کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، اس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ الزام لگانے والے کی سزا بہت سخت ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ الزام لگانے والے کی سزا بہت بڑی ہے، 80 کوڑے۔ کسی کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، ہماری ماں بہن بیٹی غلط نہیں اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اور ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی غلط الزام لگایا ہے زنا کی توبہ پر، غلط، اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے آپ نے پکڑ لیا، اس کے باوجود بھی آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ۔ مولانا جرجیس نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کپڑے اتارے ہوئے زنا کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سماج میں جرجیس صاحب گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی قسم لاؤ قرآن میرے ہاتھ میں دے دو، میں قرآن اٹھا کر قسم کھا رہا ہوں کہ ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سماج کا ذمہ دار آدمی کہے گا جرجیس صاحب کی گواہی پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جرجی صاحب قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، 4 گواہ پیش کرو۔ جرجی صاحب نے کہا میں نے اکیلے دیکھا ہے، 4 گواہ نہیں ہے۔ اب سماج کے چودھری کی ذمہ داری ہے کہ جرجی صاحب نے اپنے آنکھوں ہی سے کیوں نہ دیکھا ہو، لیکن 4 گواہ نہیں پیش کیا، اب وہ چیز بہتان مانی جائے گی، الزام مانا جائے گا۔ اب لڑکے اور لڑکی کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ جرجیس صاحب کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے۔ معمولی بات نہیں ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی عزت کو چھالنا، دیکھنے کے باوجود چپ رہو، اگر 4 نہیں ہے تو چپ رہو، اگر بول دیا اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، چاہے تم سچے ہی کیوں نہ ہو، تم ہی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 2 لوگوں نے دیکھا اور دونوں گواہی دے رہے ہیں،
साहब मैंने देखा है, लेकिन 4 लाओ, नहीं लाए तो दोनों को 80-80 मारे जाए, चाहे वो कितने बड़े सच्चे हो, कुरान उठाकर कसम खाएं फिर भी नहीं मानी जाएगी उनकी बात। तहदीद मुतय्यन कर दी, 4 गवाह लाओ। जाहिर बात है न लड़की 4 के सामने गलत काम करेगी, न तुम लाओगे, न नंगा करने का तंजा है, क्योंकि ये काम तो अकेले में किया जाता है। अकेले में किया वो जाने, उनका रब जाने तुम कौन होते हो। अगर तुमने अकेले देखा तब भी खामोश रहो, उनको तौबा करने का मौका दो। 2 ने देखा तब भी खामोश रहो, उनको तौबा करने का मौका दो। 3 ने देखा, 3 की भी नहीं मानी जाएगी। समाज का चौधरी कह रहा 3 ने देखा, लाओ लड़की को, नहीं। 3 कसमें खा रहे हैं कि हमने देखा, नहीं। 4 लाओ, 3 कह रहे हैं और 4 वो नहीं ला सके तो उन तीनों को 80-80 कोड़े मारे जाए। हाँ, अगर 4 ने देखा और 4 ने गवाही दी तब फिर लड़के और लड़की को सजा दी जाएगी। अगर वो शादीशुदा है तो पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। लड़का शादीशुदा है और लड़की कुंवारी, तो लड़के को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा और लड़की को 100 कोड़े मारकर 1 साल के लिए शहर से निकाल कर दूसरे शहर में भेजा जाएगा। लड़की शादीशुदा है और लड़का कुंवारा, तो लड़की को पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा और लड़के को 100 कोड़े मार कर 1 साल के लिए शहर से अलग कर दिया जाएगा। फर्क इतना है, दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मारा जाएगा। फर्क क्या है, लड़के को खुलेआम मैदान में दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा और लड़की को सीने के बराबर जमीन में गाड़ के सिर्फ उसके सर पे पत्थर मार कर उसको मारा जाएगा। ये कोई मामूली सजा नहीं है। करती रही एक्सक्यूज मी और मामला पहुंच जाता है होटल तक। अगर इसकी सजा के बारे में सोच लिया जाए तो रूह कांप जाती है। रूह, पत्थर, एक पत्थर पड़ेगा सर पे, वही नानी का दूध याद आ जाता है, छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, जिसको हमने मामूली काम समझ रखा है। इतना वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। और गीबत किसे कहते हैं? हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी और उनकी दूसरी बीवी नबी अकरम की आ गई। दूसरी बीवी आ गई, नाटे कद की थी, नाम सफिया, छोटे कद की थी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1.5 फुट, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। हम खुद कह रहे हैं, हमारे मुंह से खुद निकल जाता है, लेकिन ये भी गुनाह है। उसका नाम जो है, नाम लीजिए आप, किसी को नाटा, लंबा, काला, ए कल्लू सुन, ए लंबू सुन। वो एक मौलाना है, उनके नाम के आगे लिखा रहता हबीबुर रहमान लंबू। अरे आप ये नहीं कह सकते। हजरत आयशा ने इतना कहा था। अल्लाह के नबी की दूसरी बीवी आई, नाटे कद की थी। अल्लाह आपने कहा नटनी आ रही है, छुटकी आ रही है, छुटकी नटनी, नाटे कद की। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा तुम ये नहीं कह सकती थी सफिया आ रही है? तुम्हें नाम मालूम था ना? हाँ, तो कह नहीं सकती थी सफिया आ रही है? अल्लाह के रसूल नाटी है तो नटनी कह दी। आपने कहा यही तो बुराई है, जैसी वो है वैसी तुम कह रही हो उसको, और उसकी गैर मौजूदगी में कह रही हो उसके पीठ के नटनी आ रही है। आयशा तुम्हें मालूम है तुमने कौन सा जुमला कहा है? तुम्हारे मुंह से नटनी का जुमला निकला है, ये इतना कड़वा है, इतना कड़वा है, इतना जहरीला है। आयशा तुम्हारे मुंह से निकले हुए इस नटनी के जुमले को अगर समंदर में डाला जाए तो अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। इतना सा जुमला और पूरे समंदर के पानी को कड़वा कर रहा, वो भी आयशा के ज़बान से निकला। हम लोग अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कितने लोगों की बुराई इसके पीठ के पीछे करते हैं, कितने लोगों
की ग़ीबत उसके पीठ के पीछे करते हैं। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक एक जगह बैठे हुए हैं, भूख लगी हुई है। हजरत उमर ने कहा है अबू बकर ये आपका गुलाम सोया हुआ है, इसको उठाइए और अल्लाह के रसूल के पास भेज दीजिए, शायद अल्लाह के रसूल के घर में कुछ सालन, कुछ तरकारी, कुछ गोश्त मिल जाए, ले आए, हम लोग कुछ खा लें खाना। वो सो रहा था अबू बकर का गुलाम। हजरत अबू बकर कहते हैं इसको भेजो। हाँ आपका गुलाम है ना? हाँ। अरे ये बड़ा कामचोर है, सुस्त है बहुत, इसको भेजूंगा ये नहीं। कितना सा जुमला कहा था, अरे बड़ा कामचोर है, इसको भेजूंगा तो हो सकता सुबह करना है, बड़ा कामचोर सुस्त है, नहीं मैं किसी दूसरे को भेजता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी दूसरे को भेजा कि जाओ अल्लाह के नबी से कहना कि अबू बकर उमर भूखे, अगर आपके पास तो सालन हो, गोश्त हो तो वो दे दीजिए। इतने में वही आ गई, अल्लाह के नबी के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। ये अबू बकर ने जिसको भेजा ये गया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक ने और उमर फारूक दोनों भूखे हैं और कुछ सालन मंगाया, अगर आपके पास हो तो दे दो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अबू बकर को और उमर को सालन की क्या जरूरत है, वो तो सालन खा चुके हैं। जाओ उनसे कह देना कि तुमने तो सालन खा लिया, तुम्हें सालन की क्या जरूरत है। जिसको भेजा था वो गया और कहने लगा अबू बकर से, अमीर अबू बकर अल्लाह के नबी ने कहा कि इनको सालन की क्या जरूरत है। अबू बकर और उमर ये तो दोनों सालन खा चुके हैं। मैंने कहा खाया, पता नहीं जैसे कहा था वैसे मैंने कह दिया आपसे। ये दौड़ते हुए भागे अबू बकर सिद्दीक, कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के रसूल मैंने कब सालन खाया, अल्लाह की कसम पूरी रात होगी कुछ मिला ही नहीं, आप कह रहे सालन खा लिया। आपने फरमाया जो तुम्हारा गुलाम सोया हुआ है, तुमने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि ये बड़ा सुस्त है और कामचोर है, ये क्या जाएगा हम दूसरे को भेजते हैं। कहा ये तो कहा था, कहा यही तो सालन था, तुमने अपने भाई का गोश्त खा तो लिया है, अब तुम्हें दूसरे गोश्त की क्या जरूरत है। सुस्त और कामचोर कहना भी वो भी अबू बकर के मुंह से। अब सोचिए हम और आप कैसे लग रहे हैं, कहां खड़े हैं, किस समाज में जी रहे हैं। बदलो, एक इनकलाब पैदा करो, एक इनकलाब लाओ। मेरे भाइयों कम से कम 20 साल की तकरीरों के बाद कुछ लगना चाहिए कि कुछ अमली मैदान में आगे निकल रहे हैं। बकिया इसी किस्म की बातें और इस्लाह माशरे से जुड़ी हुई बातें इंशाअल्लाह 4 और 5 फरवरी को मौज़फ़्फ़र स्टैंड पर आपके सामने मैं खिताब करूँगा। 1:15 बज गया है, तकरीब 12 बजे से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, सर्दी का माहौल है। आइए हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि लाल आलमीन हमें जासूसी से बचा ले, हमें बदगुमानी से बचा ले और हमें गीबत से बचा ले, हम आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पे फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।